these interesting stories are there. What is your story? Tell us something about that. My story is called My Beautiful Wrinkles, and it features Sarika in the lead. And it's a story about a woman who's in her she's middle aged, and it's sort of her coming of age story, and how she feels when a young man declares his love for her, and how that sort of changes her life. All these six characters are there, and you are one of them. So how blessed you are that you are working with all the esteemed directors and with one of your stories. Well, I'm very excited, and it's an honor and a privilege to be part of Modern Love, especially because I love the American version as well. And yeah, I think we have a really wonderful team of directors, and it's very exciting, to be sharing that space with them. So I'm very happy, very proud. Other than your stories, which one of the stories you like the most? Well, actually, I'm just like everyone else. I'm waiting to see the other stories. Rongita and Ishita have kept us, kept everything very secretive amongst the different films. So actually, the filmmakers haven't seen each other's films. So I think that's the reason that all the filmmakers are very excited about today's screening, because of course everyone's seeing their own films, so they haven't seen the other films. So I'm very excited to see the whole show. What will be the USP of your film? What the audience would love to see in your film? I think it's love. Sarika is like an amazing actor, and I think it's wonderful to see her on screen after a while. And I think it's very important to see stories of women who are, in their 60s, and to see that they too can experience love and romance and all the confusion that comes with it, and they still have like many more chances at happiness. Thank you. रिफ्लेक्ट पकड़ना पड़ेगा मुझे। नहीं Rolf, first of all, tell us what made you do this film? What kicked you about this film? मुझे तो लगता है कि मेरी खुशनसीबी है कि मॉडर्न लव जैसा एक स्टोरी टेलिंग ब्रांड जो है, जो पहले भी बन चुका है, हैज़ कम टू इंडिया, एंड आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी। मैं मॉडर्न लव का फ़ैन हूँ, पहले भी रह चुका हूँ, और जैसे मुझे पता चला कि ध्रुव सहगल एक फ़िल्म बना रहे मसाबा के साथ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसमें होने की, इट वाज ईजी फॉर मी। वो सुन के मैं बड़ा खुश हुआ और अपने आप एक्सेप्ट हो गया इस प्रोजेक्ट में। Tell us something about your role. What is your role in this film, and how excited were you for this role? तो जिस कहानी का मैं हिस्सा हूँ, दैट स्टोरी इज़ कॉल्ड आई लव थाने, जो ध्रुव सहगल ने बनाया, एंड माई पार्ट इज़ कॉल्ड पार्थ, एंड पार्थ इज़ अ टाइमलेस गाय। वो एक ऐसा इंसान है जो आज के ज़माने में हमारे जनरेशन से है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका आइडिया ऑफ लव, उसका आइडिया ऑफ लिविंग हर ज़माने का है। ना वो पुराने ज़माने का है, ना आज के ज़माने का है, ना कल के ज़माने का है। सो आई एम द टाइमलेस गाय। And talking about Thane, as your film is named I Love Thane, so tell us something about Thane. Did you visit Thane or what? थाने में मैं एक्चुअली 2 साल की उम्र से लेके 5 साल की उम्र तक मैं थाने में था, 8 साल की उम्र तक एक्चुअली, और तो मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है, और ये मेरी खुशकिस्मती है और लक है कि ये कहानी जो मुझे मॉडर्न लव मुंबई में मिली वो थाने के बारे में ही है, और जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ वो थाने से है। तो ऐसा लगा कि एक सर्कल ऑफ लाइफ हो गया और वापस आ गए अपनी घर पे। ऐसी कौन सी जगह है थाने में जो आपको अभी भी अच्छी लगती है? कौन सी डेस्टिनेशन है थाने की कुछ ऐसी? साकेत जो सोसाइटी है और जहाँ पे हम रहते थे, तो वो एरिया मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे, मेरा बचपन लिटरली वहीं पे गुजरा है, तो वो मेरा आई थिंक फेवरेट एरिया है थाने में। Talking about Masaba, how was it working with Masaba? मसाबा इज़ फैंटास्टिक। आई वेंट विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, और जैसे ही पहले सीन किया उनके साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए ये पूरी दुनिया जानती है कि बहुत ही उम्दा डिज़ाइनर है,
आज मुझे भी पता चलेगा कि बहुत ही उम्दा एक्टर है। और आप जब खुद देखेंगे मॉडर्न लव आई लव थाने तो आपको खुद को भी पता चलेगा कि एक्चुअली मसाबा के खून में जो एक्टिंग है वो उनमें बहुत अच्छी तरीके से भी है। What according to you, what is the USP of the film? Why a person should watch your film? I think everybody should watch the entire show and every film in it. 6 कहानियाँ हैं, but why especially our stories? Because हमारी story जो है, I would like to believe एक बहुत ही simple, एक बहुत ही organic story है जो आज के जो youth है वो अच्छी तरीके से उससे connect कर पाएगी। And our stories of today, but it's talking about emotions of all generations. तो वही सबसे interesting बात है हमारे बारे में। Thank you guys. What is your film all about? ये तो देख के ही पता चलेगा अभी स्टोरी कैसे बताते, बट एक्चुअली नीलेश ने क्रिएट किया ये स्टोरी रात रानी, तो वो थोड़ा बोलते हैं इसके बारे में। सर जी, आप जब स्टोरी लिख रहे थे तब आपके दिमाग में क्या था और किस प्रकार की स्टोरी है? सर ये कहानी खुद की एक खोज की है, सेल्फ लव की है, और मॉडर्न लव एक ब्लॉग है न्यूयॉर्क टाइम्स का, सो वी अडैप्टेड दैट इनटू बॉम्बे सिटी। मुंबई शहर में एक न्यूयॉर्क की कहानी को बसाने की कोशिश है, पर बहुत कुछ कहने की कोशिश है थ्रू द स्टोरी ऑफ सेल्फ लव। फातिमा सना शेख आपकी फिल्म में है, इस स्टोरी में है, क्या कहेंगे उनके बारे में? एज एन एक्टर कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो फातिमा सना शेख बिल्कुल ये फिल्म पे इतना माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया कि मैं क्या कह सकती हूँ। वो इतना हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड और कमिटेड एक्टर है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमने जब टेक रेकी के लिए गया, वो उस पे आई, वो झुग्गी पे फ्लोर पे बैठी चुपचाप से, ऐसा कोई स्टार ट्रीटमेंट नहीं था उसका, बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर घुस गई और इतना सुंदर से अपना सारा इमोशंस दिखाया, ऑथेंटिक एंड अमेजिंग रियली। और प्रीमियर पे ही नहीं आई क्योंकि अभी दूसरा शूट कर रही है। क्या कमाल है यार, वी मिसिंग यू फातिमा। सर, आप जब लिख रहे थे ये कहानी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था इस कहानी को देख के और कैसे आपने लिख दिया? कि जहाँ तक हमें पता है थोड़ी कश्मीरी की कहानी है, क्या थोड़ा बहुत बताएं कि आप दर्शकों को थोड़ा बना भी रहे? और यार जब भी हम किसी कश्मीरी कैरेक्टर की कहानी बोलते हैं ना, तो उसके साथ बहुत कुछ ऑब्वियस सा एक बैगेज होता है। हमने एक कश्मीरी कैरेक्टर की कहानी बम्बई शहर में ऐसे दिखाई है कि ये शहर सबका है, यहाँ सब लोग आके बसते हैं, शहर अपना लेता है उनको। तो विदाउट एनी पॉलिटिकल बैगेज, बट एक इंसान की कहानी कि आप उस कश्मीरी कैरेक्टर को बतौर इंसान पहले देखें, बाद में बाकी सारी बातें हैं। सर, मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो है बहुत लोग बिजी रहते हैं यहाँ पे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं लव करने का टाइम मिलता है? लव करने का टाइम, बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन यही तो बॉम्बे में सबसे इंटरेस्टिंग है कि इतने अलग अलग किस्म के लव्स होते हैं ना, जो जैसे शायद कोई गांव में ना हो, तो इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, गे, सब कुछ। ये सबसे कॉस्मोपॉलिटन शहर है इंडिया का। तो मॉडर्न लव जो मॉडर्न है, जिस तरह का लव है, वो आई थिंक मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा हम देख पाते हैं। टाइम हो या ना हो, लोग निकाल लेते हैं। कहते हैं ना कि बम्बई जो है इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, तो लव भी यहाँ पे बहुत एफिशिएंट हो जाता है, लोग टाइम निकाल ही लेते हैं। What according to you, what will be the USP of the film? Why the people should watch your film? आज स्पेसिफिकली और मॉडर्न लव, आज स्पेसिफिकली बहुत फील गुड है। आजकल इतना क्राइसिस होता है, टेंशन, स्ट्रेस। ये फिल्म देख के ना लोग को लगेगा कि मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भी कोई भी ब्रिज पार कर सकती हूँ। अब अगर आपको लगेगा अपने लाइफ में ऐसा कुछ है जो हम सोच नहीं पा रहे कि क्या करें, तो ये फिल्म देख के वो साहस आएगा। थैंक यू। So this is your debut film. So how excited are you for this film? देखिए बहुत एक्साइटेड Bollywood debut. देखिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि लाइफ में धीरे धीरे आगे आगे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वरना हम खुद को स्टक महसूस करते हैं। और वो अनस्टक होने वाली जो फीलिंग है वो ये फिल्म भी आपको देने वाली है। मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ। बट ओवरऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि हंसल सर जैसे डायरेक्टर के साथ और प्रतीक जैसे को स्टार के साथ अपना डेब्यू करने का मौका मिला। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। Sir, talking about your roles, it is a gay partner. Were you inhabited both after your
because it's quite a tough role. देखिए एक मामूली देखिए अगर एक ये मामूली हीरो का रोल होता तो शायद मैं करता भी नहीं। आई थिंक मुझे इस रोल में इंटरेस्टिंग यही लगा कि ये एक गे लीड का रोल है और वो शेफ़, और आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम एक शेफ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर फॉर्म में शेफ़ को रिप्रेजेंट करने का करेज हमारे अंदर होना चाहिए। और हंसल सर ने जिस तरह से कहानी बांधी है तो जो खाने की मोहब्बत है, द लव फॉर फूड इज़ द प्राइमरी ड्राइवर इन माई लाइफ, और वो वैसे भी रहा है, तो इसलिए बहुत आसानी से उस मोहब्बत को इधर या इधर ट्रांसलेट करना जो है बहुत आसान हो गया। एक भी हंसल सर ने एक भी क्लास नहीं ली, एक भी वर्कशॉप नहीं ली। उन्होंने बोला रणवीर बस तुम्हारी आंखों में मोहब्बत दिखनी चाहिए बस। So how was it working with Pratik Gandhi? वो प्रतीक से फैसिनेटिंग को स्टार। मुझे उनके साथ 1-2 दिन मैंने पहले काम किया था और एक अंडरस्टैंडिंग थी, और मैं और प्रतीक हमेशा ये कहते थे कि हमको सीन से पहले एक दूसरे से बात नहीं करनी पड़ती थी। एक फाउंडेशन, हम दोनों की एज, स्ट्रगल, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इस वजह से एक फाउंडेशन ऑलरेडी बन गया था जिसके ऊपर फिर परफॉर्मेंस हमने बेस किया। Talking about your basically your story, what according to what is the USP of the story? आई थिंक हमारी जो कहानी है बाई, उसका यूएसपी जो है वो ये है कि किस तरह अलग अलग किस्म की मोहब्बत अल्टीमेटली एक साथ जुड़ जाती है, चाहे वो मोहब्बत खाने की हो, चाहे वो दादी की पोते के लिए मोहब्बत हो, चाहे वो दो लोगों की उनके लिए मोहब्बत हो। आई थिंक इट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ लव इन मैनी फॉर्म्स एंड इट कम्स टुगेदर इनटू दिस ब्यूटीफुल सिंपल इमोशन। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। First of all, tell us about how excited are you for this premiere of this film? I am very excited. क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद of course once it goes on screening everybody will watch it on the screens, but specifically for us, specifically for जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम सब इसे बड़े स्क्रीन पे देखने वाले हैं। That is going to be the big difference, and I'm actually very nervous. I don't know why. I'm excited, but I'm nervous. Talking about your director, Vishal Bharadwaj is directing you. How excited were you after getting a work from Vishal Bharadwaj? From the very beginning I've been very like excitement तो बहुत छोटा सा word है. I was actually very, I don't know, I don't have the words to explain what my feeling was when Vishal sir had called me, but I'm just very happy that he has taken the chance to tell a story like this, and उससे भी ज़्यादा मेरी किस्मत तो मतलब खिली गई है कि अगर मुझे ऐसा एक कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिला है। I'm very happy for it. वैसे ये कहानी US का जो है अडेप्टेशन है उस चीज़ का, जब आपको ये चीज़ पता चली, what was your first reaction while reading this character? See, the adaptation is part of what modern love is. आपकी सारी US की जो सबसे पहले आई थी उसमें भी सारी स्टोरीज अडेप्टेशंस ही थी, एंड आई थिंक व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग यहाँ पे कि किस तरह से आप उन स्टोरीज़ को लें और वो जो बेसिक्स हैं आप उनको रखें, लेकिन एक इंडियन सिनेरियो में, स्पेसिफिकली मुंबई स्पेसिफिक आप उसको कैसे बनाएं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ये आसान नहीं होता है, बिकॉज वी टेंड टू सी कि जब अडेप्टेशंस होते हैं कभी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी हो जाता है, कभी आप अपना जो नज़रिया है, जो देसी नज़रिया, वो नहीं आता है। सो आई थिंक दैट टू हैपन आउट हियर वाज ग्रेट वन। सेकेंडली विशाल सर ने मुझे एक बहुत स्पेसिफिक बात कही थी, इसे कि अगर आप इस कहानी का ढांचा देखें तो ये किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, ये गुजराती, बंगाली, मराठी, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, बट ही वांटेड टू मेक इट अबाउट द इंडियन चाइनीज़ कम्युनिटी, एंड फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि वो मौका मुझे मिला। वेल कमिंग डाउन टू योर कैरेक्टर, अगर आप अपने कैरेक्टर का और स्टोरी से रिलेटिविटी का थोड़ा सा एलाबोरेशन। रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि द कैरेक्टर इज़ वेरी मच लाइक मी। ही इज़ समबडी हु इज़ ही वांट्स टू बिकम अ सिंगर, ही यूज्ड टू बी अ डेंटिस्ट, लेकिन वो छोड़ के अभी सिंगिंग में आ गया है, और उसकी क्या फैमिली में क्या बातें चल रही है, कहाँ मम्मी उसकी किस तरह से उसको, लाइक एवरी मम्मी उसके बारे में वरीड है, शी इज़ वरीड अबाउट द कल्चरल कनेक्शन दैट इज़ देयर, एंड इसलिए रिलेटिबिलिटी बहुत है, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ ऐसा भी है जो वर्क करना पड़ा है जिसके लिए। लॉट ऑफ इमोशंस हैड टू बी ब्रॉट इन, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम इन द राइट हैंड्स। Mamika is a breath of fresh air actually. It's really good to work with her because she brings a lot of energy.
एंड मैं उनको गब्बी जी बोलता हूँ, मैं वामिका नहीं कहता उसे, मैं गब्बी जी कहता हूँ। गब्बी जी आप बहुत खूब हो, बहुत अच्छे हो, आप अपनी आंखों से बहुत बातें करते हो एंड इट्स बीन ग्रेट टू हैव हर बिकॉज सर हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ इन हर। एंड जब मैं उनसे मिला सेट पे एंड उनके साथ एक्टिंग की तब मुझे पता चला कि दैट फेथ वॉज वेल प्लेस्ड। फैंस को बस ये कहूँगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट हैज़ बीन देयर थ्रू आउट। आई नो लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि अगर मैं अच्छा काम कर सकता हूँ तो मैं और क्यों नहीं कर रहा हूँ। Well, hopefully this is one of those really good things that you will like and may it be the beginning of many more. Thank you. Thank you. चित्रांगदा जी अच्छा ठीक है, दो नहीं बस दो सवाल। कहानी के बारे में बताइए, क्या स्टोरी है आपकी? मेरी फिल्म की कहानी का नाम है कटिंग चाय, जो अरशद वारसी के साथ है। और एक लतिका मेरा कैरेक्टर है और ऐसी लड़की की कहानी है जो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसने अपने आप को पीछे छोड़ दिया है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, घर है। सो एक तरह से वो दिन उसका एक रिग्रेटफुल सा डे है जहाँ उसको लगता है कि शायद अगर मैं इससे शादी करी होती या वो ब्रेकअप नहीं हुआ होता या फिर मैं वहाँ गई होती तो मेरी लाइफ अलग होती। सो ये एक ऐसी दिन की कहानी है। आपने क्यों ये स्टोरी आपने चुनी और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न स्क्रिप्ट था, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल और साधारण तरह से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को कहा गया है। जो एक ऑर्डिनरी लाइफ होती है उसको, जैसे मतलब मैं उनका नाम काफ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जैसे ऋषिकेश मुखर्जी करते थे, एक सिंपल सी कहानी कहते थे खूबसूरत तरीके से, वैसी ये कहानी है जो आजकल बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, वैसी स्क्रिप्ट्स। सो अमेज़ॉन की बात की जाए या OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो बहुत सारी जो है फिल्में जो है आ रही हैं और बहुत सारी व्यूवरशिप बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर वो कंटेंट पे ध्यान देते हैं एंड कंटेंट इज़ द हीरो। जो मुझे लगता है अमेज़ॉन प्राइम इज़ सम प्लेस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा कंटेंट को बैक कर रहे हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स को बैक कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दैट्स द किंग। आई थिंक कंटेंट इज़ द किंग। सो या अरशद इज़ अमेजिंग। अरशद जी पहुँच गए हैं, थोड़े से लेट हैं। देयर ही इज़। ओके, सो लवली वर्किंग विद हिम। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत एफर्टलेस हैं और कॉमिक टाइमिंग हम सब लोग जानते हैं। ही इज़ राइट हियर। Arshad, come say hi. Arshad, come say hi. Hello, people. This is my Hello, husband in the people. film. Danny, say hi. Look at my wife, gorgeous as hell. They were like, कैसा लगा आपको काम? आपको कैसा लगा मेरे साथ काम? जानना चाहेंगे कि बोलो, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे चित्रांगदा ने यहाँ पे बुलाई सिर्फ उसकी तारीफ करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। Lovely person, lovely actor. Enjoyed myself. Same here, ditto. Thank you so much. इस कहानी के बारे में बात बताइए, इस कहानी के बारे में बताइए, आपको कैसा? अरे मैं क्या बताऊँ, एक ज़िंदगी की कहानी है, एक लड़की की कहानी है जिसकी होता है ना कि हर इंसान सोचता है काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। देखो जो उस तरह की बातें हैं, जो किरदार है इसका, चित्रांगदा का, उसके दिमाग में चलती है बात। स्लाइस ऑफ लाइफ। राइट। See, I tell you something, वो adaptation I understand, but the fact is, मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। I mean, it's basically a female-oriented subject, but मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारी लगी कहानी। और why not, अच्छी चीज़ें करना चाहिए लाइफ में। सर, आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? ओह बॉय, कौन सा सीन हम लोगों को? आई थिंक एक मरीन लाइन्स पे बड़ा अजीब सा हमारा एक कॉन्वर्सेशन होता है और फिर हम लोग निकल जाते हैं पैदल मरीन लाइन। बहुत प्यारा है। तो मैं नहीं, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव देयर स्पेशलिटी। अरे और कुछ? हाँ,
कहानी लेकर आए हैं आप? कहानी अलग से ज़्यादा कहानी बड़ी मज़ेदार है और ये एक माँ बेटे के रिश्ते की कहानी है। कैसे माँ पदस्थ हो जाती है बेटे के लिए और कैसे एक ये रिश्ते में दरार आती है और कैसे साथ में आते हैं। ये न्यूयॉर्क के एक आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है जिसमें कि मैंने जो इंडिया में ख़त्म होती हुई इंडो चाइनीज़ कम्युनिटी है उसके अंदर इसको प्लेस किया। सर बात की जाए तो पिछले स्टार कास्ट में आपने वामिका कबीर और फैन चैंग को रोल किया है, तो कैसे आपके अंदर आप क्या सोच कर आपने ये स्टार कास्ट जी स्टार कास्ट को क्यों चुना था आपने? नहीं, क्योंकि वामिका बहुत अच्छी एक्टर है और चैंग भी बहुत अच्छा एक्टर है। चैंग बहुत अच्छा सिंगर है। इसमें एक और बहुत बड़ी एक्टर है सिंगापुर से जो आई हैं, उन चाइनीज़ ओरिजिन की हैं, उनका नाम है यो यान यान। बहुत ही खूबसूरत एक्टर हैं और तीनों की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। थैंक यू। खुश हूँ क्योंकि ये बहुत ही कमाल की सीरीज़ है, हम लोग हिस्सा बन रहे हैं मॉडर्न लव। आई थिंक ऑलरेडी इसके चर्चे पहले से अमेरिका के अंदर थे और अभी ये भारत में बन रही है। 6 कमाल के डायरेक्टर्स, अच्छी एंसेंबल कास्ट, इतने कमाल के म्यूज़िक कंपोजर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, राइटर्स। आई थिंक ये मेला है, एक कमाल का मेला है और मैं इसका हिस्सा हूँ। आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच। सर ये स्टोरी कैसी स्टोरी है? ये एक प्यार जो होता है वो सिर्फ किसी एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं कर सकते। कई बार आपका सेल्फ लव, खुद को प्यार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये कहानी है स्पेशली रात रानी जो इसका मैं हिस्सा हूँ वो सेल्फ लव के ऊपर है। तो फातिमा है, मैं हूँ, बाकी आप फिल्म में सर अपने फ्रेंड्स तक आपके हिसाब से क्या यूएसपी रहेगी इस फिल्म को देखना चाहिए? सबसे बड़ी बात है प्यार, जो फिल्म में भरपूर है। और कई बार प्यार के अलावा आपका सेल्फ लव, खुद को लेके प्यार, या जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं ना तो आप दूसरों से भी प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग इससे सेल्फ लव की एक तरह की मोटिवेशन लेके जाएंगे, आई होप। थैंक यू।